Assalamu alaikum everyone. I want to welcome you to PACC and I want to appreciate and express my gratitude to all of you because of a special reason. And that special reason is that I have been into hundreds of seminars and speeches and talks during the past 10 years or so. I think this is a unique badge that you're carrying today. This is the first time ever, that the program has started absolutely on time. You know what happens is whenever I go for a talk, usually I prepare my notes, but the first 10 minutes are spent in lecturing people about the importance of time and being on time and being punctual. But you have not given me this excuse today. So applause and kudos to all of you that in the winters of Karachi, jitni bhi hamare paas sardiyan hoti hain, you made it possible today on time. So thank you so much. Uh, it's a good mix of audience, and I want to spend the next 1 hour in challenging perhaps your belief system, your existing thought process, and give you a roadmap that you can use to make yourself better and make your personality better. But before I start, एक बड़े मशहूर ग्रीक फिलोसोफर थे, थिंकर थे, स्कॉलर थे, हिपोक्रेटिस. उनका एक बड़ा जबरदस्त कोट है जो मैं आपसे एज अ क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू. ही सेड that before I heal you, I want to ask you if you are willing to give up the things which made you sick at the first place. I repeat, before I try to heal you, I want to ask you a question. I want to plead to you that if you're willing to give up the things which made you sick at the first place. In the context of our talk or my talk today, इसकी significance ये है कि when during the next 1 hour there will be many things which might sound terse to you, which might be absolutely against your existing belief and value system. And you never know, they might be the hurdles or challenges which are holding you down. And I would love to challenge and provoke you in that sense. But remember कि जब आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम चैलेंज होते हैं उसी के बाद आपकी ग्रोथ होती है. और कंफर्ट जोन में जब हम रह रहे होते हैं, यूजुअली इट्स द मोस्ट इनफर्टाइल प्लेस इन द वर्ल्ड. You do not grow in the comfort zone. So I would like to challenge a few of your belief systems, value systems, and how you conduct your lives. So the topic is self-development. And if you're expecting that in this 1 hour, I'll give you a hack or a shortcut or some magic pill that will absolutely transform your life, this is not possible. However, किसी भी दुनिया के स्पीकर से, किसी भी दुनिया के YouTube वीडियो से अगर आप 2 से 3 चीजें समझ लें and you make it part of your repertoire and you make it part of your presence and you make it part of your personality, अपनी शख्सियत का अगर आप हिस्सा बना लें, तो I can guarantee that whatever I speak, if you pick up 2 to 3 things today, it will really help you nurture yourself cognitively, psychologically, mentally, emotionally, personally, and professionally. That sets the tone. Fair enough? So the first thing, sir, can I have a marker? Because I will be using this board a lot. I hope this is visible to everyone. Is this a good place? Okay. Thank you. Thank you. So the first question, मेरी आवाज आ रही है पीछे तक और do I need to use the mic? Okay. So the first question you need to ask yourself is, who are you? आप कौन है? Usually when we are asked this question, we tend to say
relate our personality to our designations, to the organizations we work for, or to our passions and obsessions. But have you really ever asked yourself this question कि मैं हूं कौन? Who am I? Apart from the name, we are Shahrukh, we are Shazils, we are Aisha, we are Sidra, we are Fatma, we are Maryam, we are Khabar. But who actually we are? This question is of prime importance. Because if you do not ask this question, society will thrust its values and belief systems on you. And society is ruthless. सोसाइटी के अंदर सुपर स्ट्रक्चर्स होते हैं. सुपर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सबसे पहले रिलीजन. And in a country like Pakistan, which is driven by religion, it is the biggest superstructure we have. Number two, society. If you do not give meaning to yourself, society will thrust it upon you. Number three, your family. अगर आप इन दोनों के चुंगल से भी निकल गए, the third thing or the third superstructure which will give you meaning and identity is your family. The society, your religion, your social fabric and your family will determine कि आपको क्या अच्छा लग सकता है और क्या बुरा लग सकता है. What is moral and what is immoral? What is good? What is evil? What is acceptable and what is unacceptable? So the first thing जो आपने अपनी जिंदगी में, and no matter at what stage you are, I see a lot of gray hair in the auditorium, and usually people tend to think that when their hair turn gray, they're old. That's not the definition of being old. मैं आज आपको youth की definition बताता हूं. पाकिस्तान में कहा जाता है that 65% of the population is under the age of 30. That means we are a youthful country. That's a very wrong way of categorizing whether a country is youthful or not. How do you categorize youth? एक नौजवान, एक जवान शख्स वो है जिसके अंदर आग है, जिसके अंदर पैशन है, जिसके अंदर ऑब्सेशन है, जिसके अंदर मैडनेस है, जिसकी जिंदगी के अंदर एंकर है किसी चीज को हासिल करने का. He is continuously, perpetually in pursuit of a progressive ideal. अगर आपकी जिंदगी के अंदर आज भी, no matter you're 18 or 80, if you're daily looking forward to any passion in life, any obsession in life, there is some anchor which is keeping you awake at night and letting you feel active, तो फिर आप यूथ हैं. फिर आप परवाना करें कि आप 50 के हैं, 60 के हैं, 70 के हैं, 80 के हैं. अगर कोई आपसे पूछे आपकी जिंदगी में कोई ड्राइविंग फोर्स है, and you can give an answer, and you say मैं इस ड्राइविंग फोर्स के पीछे भाग रहा हूं, तो यू आर यूथ. और अगर कोई 18 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, 25 साल का है, 30 साल का है, he or she is not looking forward to anything in life or the day, and there is no progressive ideal in his life, no objective in life, then I'm sorry, you do not deserve to be called youth. Now the question is, a lot of people ask me कि ये पैशन कहां से ढूंढे, जिंदगी का मीनिंग कहां से ढूंढे, जिंदगी का पर्पस कहां से ढूंढे. तो आज मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बता के चला जाऊंगा जिसको अगर आपने समझ लिया, इट विल रियली रियली हेल्प यू फाइंड दैट पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ. ऑलराइट, बट बिफोर दैट, जैसे हिप्पोक्रेटिस ने कहा था कि सक्सेस हासिल करने के लिए अगर आज मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी ऑफ द पीपल आर विलिंग टू बी सक्सेसफुल और एस्पायर टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, आई वुड से 99% और द 100% ऑफ द पीपल विल raise their hand and say I want to be successful. लेकिन स्टैटिस्टिक्स ये शो नहीं करते. स्टैटिस्टिक्स तो ये शो करते हैं कि 100 में से 2 बंदे सक्सेसफुल होते हैं. अब अनदर क्वेश्चन इज कि सक्सेस की क्या डेफिनेशन है. मेरा एक पूरा सेमिनार होता है 3 घंटे का जिसमें आई डिफाइन व्हाट इज सक्सेस. आज हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो आई कैन नॉट गो इनटू दैट डिटेल, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि सक्सेस की जो मेरी पर्सनल इक्वेशन है उसमें पैसा, क्योंकि हमारे इन द मॉडर्न कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड वी टेंड टू थिंक दैट मनी इज द अल्टीमेट एपिटमी ऑफ सक्सेस एंड द अल्टीमेट यार्डस्टिक टू जज वेदर समवन इज सक्सेसफुल और नॉट. इट इज जस्ट द सेकंड वेरिएबल. इस सक्सेस इक्वेशन में 10 वेरिएबल्स हैं. इट्स अ मल्टीवेरिएट इक्वेशन जिसके अंदर 10 वेरिएबल्स हैं जो इंसान को सक्सेसफुल बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले है फिजिकल हेल्थ. अगर आपकी हेल्थ अच्छी है
तो आप सक्सेसफुल हैं। आपको बुखार हो जाता है, आपके जितने मर्जी पैसे बैंक बैलेंस हो, इट गोज डाउन द ड्रेन, इट्स ऑल इन वेस्ट. So if you're healthy, you're successful. Number 2, if you're financially independent, you're successful. Number 3, if you're emotionally balanced, you're successful. Number 4, if you have a social capital, you're successful. Number 5, cognitively, psychologically, you feel balanced, you're successful. And the list goes on. And eventually, if you're happy in life, you're successful. और हैप्पीनेस की एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं कि हार्वर्ड स्टडी फॉर एडल्ट डेवलपमेंट, समवन नोज अबाउट दैट. आई थिंक इट स्टार्टेड बैक इन 1938. इट हैज बीन मोर देन 80 इयर्स दैट स्टडी इज ऑन गोइंग. हार्वर्ड ने कुछ इंडिविजुअल्स को उठाया और उनके ऊपर एक सिंपल हाइपोथेसिस रखा कि व्हाट मेक्स अ हैप्पी लाइफ. द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च वाज कि व्हाट मेक्स अ हैप्पी लाइफ, एक अच्छी जिंदगी क्या है, एक खुश जिंदगी क्या है. सो हार्वर्ड स्टडी फॉर एडल्ट डेवलपमेंट में जिन इंडिविजुअल्स को उन्होंने सिलेक्ट किया एज अ रिसर्च सब्जेक्ट्स, उसमें से एक अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बना, जॉन एफ कैनेडी. कुछ लोग क्रिमिनल्स बने, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस बने. एंड दैट रिसर्च इज स्टिल कैरिंग ऑन. उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चों के बच्चे हो गए. एंड यू नो व्हाट अ ब्यूटिफुल कंक्लूजन टू दैट रिसर्च अभी तक जो उन्होंने निकाला है कि खुश जिंदगी रहने के लिए ना तो इंसान को पैसे चाहिए, ना कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए, ना फॉर्च्यून चाहिए, ना इतनी ज्यादा वेल्थ चाहिए. रिसर्च ने यह साबित किया कि जिन लोगों के रिलेशनशिप्स तगड़े हैं, पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, दे लिव द हैप्पीएस्ट लाइफ. सो द फर्स्ट थिंग or the first anchor for this is that if you want to live a happy life, invest in your relationships, invest in people, invest in your family, invest in your friends. Again, we have come to a situation in our modern social media driven world where everything looks like a mirage. We do not believe in people, we do not trust in people, we tend to think everyone is our enemy. This is a very negative way of looking at things. Nurture your relationships, invest in them. Yes, people will hurt you, but so what? You will always find a group of 2 to 3 people who will be close to you apart from your family, and they will let you live a happy life. With that being said, ज्यादा लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते या अपने आप को डेवलप क्यों नहीं कर पाते? The reason is people are not willing to sacrifice. Because success demands sacrifice. Sacrifice of your time, sacrifice of your physical capital, your monetary capital, your family time, your values, your belief system. ज्यादातर लोगों के अंदर, आज भी इस रूम के अंदर या मैं जिस रूम में भी बात करूं, उसमें 1000 लोग हों, 200 लोग हों, 97-98% of the people do not have the courage and guts to challenge their family, their religion, their belief, their cultural and moral values. अब सक्सेस हासिल करने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वक्त का, अपने रिलेशनशिप्स का. कहीं ना कहीं तो आपको गट्स दिखाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा. बट पीपल वांट टू लिव अ वेरी एवरेज मीडियोकर लाइफ एंड दे आर नॉट विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू अचीव दैट सक्सेस. अब उससे होता यह है कि जिस शख्स में जान होती है, जिस शख्स में डेप्थ होती है, वो आगे निकल जाते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर लेफ्ट बिहाइंड. सो विद दैट बीइंग सेड, मैं आज आपको एक केज के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस इज स्टक. इसके 3 लेयर्स हैं. द फर्स्ट इज द मॉरल कंफर्ट. Now, what's a moral comfort? The society tells you what is good and what is bad. And in a society like Pakistan, it doesn't chase excellence. Please listen to this. A society like Pakistan doesn't chase excellence. It chases obedience. अगर आप obedient है तो आप अच्छे हैं, और अगर आप सवाल उठाना शुरू करते हैं, you're bad. You are a rebel. They brand you as a rebel. But remember, doubt is the first step towards wisdom. You know why Pakistan is amongst the worst in terms of Human Development Index? Out of 145 countries in the world, we stand at 143.
We do not have access to quality health care. We do not have access to security. कराची में हम बाहर सड़क पे खड़े होकर मोबाइल के ऊपर बात नहीं कर सकते. We keep on blaming the politicians and all the bureaucracy for that. Never blame them. Blame ourselves. We need to blame ourselves. क्योंकि हमारे अंदर क्वेश्चन करने की ताकत ही नहीं है. Because society rewards obedience. लेकिन मुआशरा, civilization, countries, they only grow once they learn to question. I'll give you the example of Europe. Europe was stuck in the dark ages for 600, 800 years. The Muslim world was right there at the top, which we call the golden age of Islam. However, आज से 600 साल 500 साल पहले यूरोप ने ये डिसाइड किया, पहले रेनेसांस, रिफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट मूवमेंट में, कि ये जो कायनात का निज़ाम है, जो यूनिवर्स का निज़ाम है, ये बहुक्म इलाही नहीं चलेगा, इंसान इस कायनात का निज़ाम चलाएगा. Now in a society like Pakistan, if you say something like this, it can be tantamount to blasphemy. हालांकि the reality is very simple, कि ये कायनात, ये यूनिवर्स चलती है कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर. मुझे आज यहां पर आना था, मैं सुबह उठा, नहाया धोया, कपड़े पहने, अपने सुबह उठ के नोट्स प्रिपेयर किए, गाड़ी का इग्निशन ऑन किया, रास्ते से कॉफी ली और मैं यहां पर आ गया. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू अ कॉज एंड अ कॉज हैज एन इफेक्ट. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. बच्चे का पैदा होना, फूल का खिलना, समंदर के अंदर वेव्स आना, चरिंद परिंद, सीजन्स, वेदर, क्लाइमेट, everything is dovetailed to a cause and effect. But in Pakistan, we are stuck with occasionalism. Occasionalism क्या है? जिसका गजाली, इमाम गजाली साहब जो थे, he was one of the proponents of that. वो कहते थे कि एक रुई को जब माचिस से आग लगती है, वो माचिस उसको आग नहीं लगाती, वो आग बहुक्म इलाही लगती है. अल्लाह चाहेगा तो लगेगी, अल्लाह चाहेगा तो नहीं लगेगी. It's a very sensitive topic. And like I said, I'll challenge that. आप अपनी जिंदगी में कोई भी इवेंट उठा के देख लें. It is always driven on cause and effect. We are not here to debate about the existence of God or not. That's a separate. I believe in God. I am a Muslim. But I believe in cause and effect. आप रुई को एक दफा आग लगाएंगे, 1000 दफा आग लगाएंगे, 1 अरब दफा आग लगाएंगे, उसको रुई को आग माचिस की वजह से ही लगेगी, बिकॉज नेचुरल लॉज आर डिजाइन्ड दिस वे. ये माइक यहां पर पड़ा हुआ है, एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, माई लेफ्ट हैंड एक्ट्स ऑन इट, आई पिक इट अप एंड नाउ आई पुट इट डाउन. इफ एन एक्सटर्नल फोर्स डजंट एक्ट ऑन इट फॉर द नेक्स्ट 1000 years, इट विल कीप ऑन लाइंग ओवर हियर. आप इसके ऊपर जितने मंत्र पढ़ लें, जितने दम दरूद कर लें, that's the reality of it. We suffer from, unfortunately, हम लोग और fortunately, हम लोग हर काम को, नीचा ने कहा था, people who follow me, they know my love for नीचा. वो कहता था कि man will never be responsible as long as God is alive. हम लोग अपनी weaknesses को, this is a syndrome with Muslims, कि हम लोग अपनी वीकनेसेस को खुदा के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग इंशाल्लाह. इंशाल्लाह का असल मतलब ही ये है कि गॉड और द नेचर और द फोर्सेस व्हिच ड्राइव दिस वर्ल्ड हैव गिवन यू द पावर टू राइट द डेस्टिनी ऑफ योर लाइफ योरसेल्फ. नो वन विल हेल्प यू बट योरसेल्फ. कुरान पढ़ें, सूरह राद आयत नंबर 13, कि verily God doesn't help the people until they are not willing to change what is within themselves. हम लोग हर चीज इंशाल्लाह और माशाल्लाह के सपोर्ट करके वी डू नॉट टेक एक्शन. और इसमें कोई ये बात नहीं कि आप दीन से दूर हैं. मैं तो आपको रियलिटी की बात कर रहा हूं. आज रात को सोने से पहले थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, इट इज अ रिजल्ट ऑफ योर डिसीजंस. और जो लोग जिंदगी में आगे निकल जाते हैं, उनका सिंपल यूजुअली एक सिंपल फॉर्मूला ये होता है कि जिनके हाई क्वालिटी डिसीजंस outweigh low quality decisions, वो कामयाब हो जाते हैं. और जो लो क्वालिटी डिसीजंस लेते चले जाते हैं, वो नीचे चले जाते हैं. और एक और तरह के लोग नीचे जाते हैं, वो कौन है?
people who suffer from a disease called excusitis. Everything, हर चीज के पीछे एक्सक्यूज. मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ? बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली. मुझे जॉब में तरक्की क्यों नहीं मिली? बिकॉज माई बॉस वॉज वेरी टॉक्सिक. कराची में मैं कामयाब क्यों नहीं हो सका? क्योंकि मेरा मोबाइल छिन गया. पाकिस्तान में मैं क्यों कामयाब नहीं हो सका? क्योंकि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है. आई टीच एट लीडिंग बिजनेस स्कूल्स एंड आई टेल माई स्टूडेंट्स, एंड दिस इज नॉट अ गिमिक, आई टेल यू, Pakistan is a gold mine of opportunities. Gold mine of opportunities. Why do I say that? What's the logic behind this? किसी भी मुआशरे में जहां पे प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं वहां पे अपॉर्चुनिटीज भी उतनी होती हैं. हम लोग बिजनेस में पढ़ाते ही हैं कि अगर आपने कोई एंटरप्रेन्योरियल वेंचर शुरू करना है तो पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो. हम लोग यूजुअली ये सोचते हैं कि यार व्हाट्स द गुड बिजनेस आइडिया दैट वी कैन वर्क ऑन. रॉन्ग वे टू स्टार्ट अ बिजनेस कम्युनिकेशन और अ बिजनेस आइडिया डिस्कशन. द वे यू स्टार्ट इट इज, let's identify a problem that exists in the society of in Pakistan, and no points for guessing or no brownie points to me. Pakistan is a society which has a plethora of problems, innumerable problems. खवातीन की सिक्योरिटी बिग प्रॉब्लम, सोल्यूशन बन सकता है उसके ऊपर. ट्रांसपोर्ट बिग प्रॉब्लम, आप कोई एंटरप्रेन्योरियल वेंचर बना सकते हैं. किड्स की एजुकेशन, 25 मिलियन 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, अपॉर्चुनिटी. Employment is at an all-time low, opportunity. People do not dress well, opportunity. People are not hygienic, opportunity. There is an opportunity at every step of the way. You just need to have the eyes and ears to see that. So पहला जो हम केज में पूरी उम्र फंसे रहते हैं वो है मॉरल कंफर्ट का. दूसरा है बोरोड आइडेंटिटीज, जिसके बारे में मैंने पहले बताया. Almost 2,500 years ago, on the streets of Athens, एक मोटा मैला कुचैला सा शख्स लोगों को रोक के सवाल पूछा करता था. And people used to hate him and abhor him at the start. वो पूछता था कि यार ये जो तुम जिंदगी गुजार रहे हो, कभी सोचे what is the purpose of your existence? Why are you here? What is the objective of life? What drives you every day? And you know what the name of the person was? Socrates. सुकरात, जिसको उर्दू में कहते हैं. When he was punished by the court of Athens, तो रात, ये प्लेटो की बुक रिपब्लिक में जो डायलॉग्स हैं, यूथेफेरो, क्रीटो, उसके अंदर उसका पूरा जो ट्रायल हुआ है उसके बारे में उसने लिखा है प्लेटो ने. तो रात को जब उसको फांसी या उसको जहर देने जा रहे थे, तो रात को उसका दोस्त आया उसके पास. वो कहता है आई हैव, मेरी सेटिंग, जैसे हमारी लोकल जबान में मैंने सेटिंग बना ली है. ये ओनली इफ यू आर विलिंग टू बैक ऑफ फ्रॉम योर बिलीफ्स, फ्रॉम व्हाट यू प्रोपगेट, यू विल बी आउट ऑफ द प्रिजन. सोक्रेटिस ने कहा कि अगर मैं यहां से निकल गया, इफ आई एस्केप आई विल डाई. इफ आई एस्केप एंड आई रन आउट ऑफ एथेंस, आई विल डाई. और लोग समझते हैं कि लोग सोक्रेटिस को जहर देख के वो मर गया. वो मरा नहीं, वो जहर पी के जिंदा रह गया, अमर हो गया. ही इज इमॉर्टल. आज 2,500 साल बाद भी कराची के पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर में शाहरुख आज आपसे सोक्रेटिस की बात कर रहा है. दैट्स हाउ पीपल लीव लेगेसी. दैट्स हाउ पीपल मेक देयर मार्क इन द वर्ल्ड. तो जो सोक्रेटिस बात करता था बोरोड आइडेंटिटीज की, आपने भी आज जाके अपने आप से पूछना है कि हैज द सोसाइटी गिवन मी अ मीनिंग, स्पेशली टू द वुमेन. क्या सोसाइटी ने आपको बताया कि मुझे किस तरह के कपड़े पहनने हैं, मुझे किस तरह से बात करनी है, मुझे किस तरह से अपना बिहेवियर रखना है, या मैंने खुद चॉइस की है? आई एम एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट. I don't know whether people over here know what existentialism is. People who have an interest in philosophy, especially to the women, मैं आपको बताना चाहता हूँ, because feminism की बहुत बात होती है. Feminism is directly dovetailed to existentialism. Existentialism या existentialist वो लोग होते हैं, या existentialism का फलसफा ये कहता है, philosophy ये कहती है that life has no inherent meaning. Life is meaningless. This universe doesn't have a cosmic purpose. Now when you think on these lines, there are now two ways of going about it.
अगर यूनिवर्स का कोई पर्पस नहीं है तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? मैं भी फिर अपना खा पी के बच्चे पैदा करके निकल जाता हूं इस दुनिया से. बट आई एम अ पॉजिटिव एग्जिस्टेंशियलिस्ट. सिंस यूनिवर्स doesn't have a meaning, I have complete authority to give meaning to my life myself. I am on the steering wheel of my life. I have the reins of my life in my own hands. जिस तरह आप घोड़े को चलाते हैं उसकी रेंज लगाम आपके हाथ में होती है, you can turn it left or right. Similarly, an existentialist believes कि मेरे पास भी ये अथॉरिटी है. बट दिस अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको एब्सर्ड कहते हैं, सार्ट्रे ने कहा था. तो खवातीन, अगर आप फेमिनिज्म को पढ़ना चाहते हैं तो एक जबरदस्त बुक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन दिस टॉपिक इज द सेकंड सेक्स बाय सिमोन डे बोआ. Especially women in Pakistan, I absolutely love when I see women driving bikes or riding bikes in Karachi. I feel so good. वो भी मैं देख रहा होता हूँ कि किस तरह से लोग उनको हूट कर रहे होते हैं, बट kudos to those women, to their courage, who are riding motorbikes in Pakistan. पाकिस्तान की पॉपुलेशन में विमेन का शेयर 50-50 ऑलमोस्ट, लेकिन वर्क फोर्स में इट्स नॉट मोर देन 20-22%. Pakistan will never ever rise until women realize their potential and they become part of the economy. तो खवातीन को भी मैं ये encourage करना चाहता हूं कि अपने आप से पूछें कि have you been given identities from your parents or the social fabric you are in, or you have given meaning to your life yourself. अब इसमें ये मसला नहीं है कि सोसाइटी आपको कह रही है आपने हिजाब करना है और मैं हिजाब नहीं कर रही. इस चीजों से निकल आए. वी आर इन द 21st सेंचुरी. आपने जो पहनना है आप पहने, आपने हिजाब करना है, आपने मॉडर्न ड्रेसिंग करनी है. अपने कैरेक्टर के ऊपर देखें कि क्या मैंने जिंदगी में अपना जो पोटेंशियल लेकर आई थी मैंने उसको फुलफिल किया कि नहीं. Perhaps you are a great artist. Perhaps some of the girls sitting over here have great music sense. Some can be great architects. Some can be great engineers. Pursue it. In Pakistan, हमारे एक सोसाइटी के अंदर एक बड़ा फेमस सेंटेंस है कि खवातीन को कहा जाता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी हो. कहा जाता है. For what a bad sentence it is. मर्द की क्यों ना किस्मत अच्छी हो. क्यों? क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी में उसको दुआ ये दी जाती है कि तुम्हारी जो किस्मत है वो तुम्हारे हस्बैंड और इन लॉज के हाथ में है. रादर देन टेलिंग हर कि यार बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, परस्यू योर करियर, टेक योर करियर टू द नेक्स्ट लेवल, वी टेल हर कि तुम तो किस्मत के हवाले हो. अब तुम्हारे इन लॉज जाने, अगर तुम्हें हस्बैंड किस्मत से अच्छा मिल गया, यू विल सर्वाइव एंड थ्राइव, अदरवाइज यू आर गॉन. It's a very wrong way of looking at the status of women in Pakistan. So I always believe that if Pakistan has to rise, women need to come out of their borrowed identities and search the truth of their life themselves. And let me tell you, not only the girls, the boys, the men, when you will go on search of truth, you will realize that whatever you have been told since the birth was perhaps a big blatant lie. रियलिटी तो वो है ही नहीं जो आप समझ रहे थे. अपनी टॉक के आखिर में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, इफ आई रिमेंबर दैट, कि आपको वो कहानी सुनानी है अबाउट द ट्रूथ. तीसरी चीज है इस केज के अंदर और आखिरी चीज, दैट इज फियर ऑफ आइसोलेशन. जब आप सक्सेसफुल होने के लिए जाएंगे, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जाएंगे, तो आप अकेले होंगे. अकेले कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यहां पे बैठे हुए एक शख्स डिसाइड करते हैं कि मुझे फ्रेंच जबान सीखनी है. अब फ्रेंच जबान सीखने के लिए आपको वक्त चाहिए. फैमिली फंक्शंस हैं, शादी का इवेंट है, दोस्तों ने बुलाया लेकिन आपको फ्रेंच सीखनी है. सो आपको दोस्तों को बोलना होगा, फैमिली को एक्सक्यूज करना होगा कि नहीं, आई एम नॉट अवेलेबल, आई एम लर्निंग फ्रेंच. या किसी शख्स को शौक उठता है कि मुझे गिटारिस्ट बनना है, म्यूजिशियन बनना है. तो जब तक ऑब्सेशन, पैशन नहीं होगा, तब तक आप क्वालिटी गिटारिस्ट नहीं बन पाएंगे. तो उसको करने के लिए आपको वक्त देना होगा. जब आपको वक्त देना होगा तो फिर आप आइसोलेटेड होंगे. फैमिली कहेगी कि अपने में ही लगा रहता है. वी आर अ कलेक्टिविस्ट सोसाइटी. इसको पंजाबी जबान में कहते हैं सांझा. सांझे लोग हैं हम लोग. हमारी सक्सेस भी सांझी होती है और फेलियर तो हम लोग बर्दाश्त कर ही नहीं सकते. अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ बुक कॉल्ड स्टार्टअप नेशन व्हिच टॉक्स अबाउट द सक्सेस ऑफ इजराइल एज एन एंटरप्रेन्योरियल नेशन.
तो उसमें लिखा हुआ है कि वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द सक्सेस ऑफ इजराइल एंड देयर एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स इज दे सेलिब्रेट फेलियर. हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ शेयर फैमिली प्रेशर वी आर नॉट एबल टू बेयर फेलियर एट ऑल. वी कैन नॉट sustain failure. We cannot even talk about failure. They celebrate failure. So unfortunately, this is the reality we have to live with. But society will continue to pull you back. But if you're willing to develop yourself, तो you will move ahead. अब सवाल ये है कि शाहरुख आपने की सारी बात कर दी. How do we move ahead? What is that formula or the system that you spoke about that will help us move ahead? So now I'll move over here to the board and give you a system which I hope will help you excel. Let me make this. I write like a doctor, so please pardon me, okay? There is an island in Japan known as Okinawa. Okinawa में दुनिया में सबसे ज्यादा centenarians हैं. What is a centenarian? A person who lives 100 years. So when scientists went over there, तो उन्होंने they tried to find out what's the reason behind. Some people said they have green teas of the world और उसके बाद सारे पाकिस्तान ने green tea पीना शुरू कर दी. Some people said they have very good climate. Some people say they have fantastic weather. But when people dug deep, they found out that they live their life according to a principle known as. नजर नहीं आ रही आपको? ये हाँ? Yeah. So please bear with me. मैं आपको बोल के बता दूंगा तो. And then perhaps if you have a group, तो we can. Don't worry. By the time you leave this, ये आपको हिफ्स करवा के जाऊंगा. फिक्र ना करें. Okay? Don't worry about this. So they live their life. When people try to find out why do the people of Okinawa live so long? So they found out they live their life according to a principle known as Ikigai. I think switch on the lights. I'll explain. Please, can you switch on the light? Yeah, please do that. Thank you. अब Ikigai क्या है? Ikigai is a principle which says to live a meaningful life, a life of purpose. Now, how do you live a meaningful life? The reality of Pakistan is कि हमारे यहाँ फैमिली और बचपन से हमें ये बताया जाता है कि यार अल्लाह का शुक्र करो और बस जिंदगी गुजारो, अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारो, बस यही मीनिंगफुल लाइफ है. मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा. आप जिए अल्लाह के लिए जिए, लेकिन भाई उसी अल्लाह ने तो आपको पोटेंशियल दिया है ना, ज़हन सोचने के लिए दिया है, रीजनिंग के लिए दिया है, आपको गला दिया है गाने के लिए, आपको समाते दिए हैं, आपको आंखें दी हैं, आपको हाथ पांव दिए हैं. क्यों दिए हैं? So that you can make the best of your presence in this world. And how do you realize that? I'll give you a small way of thinking. It's my personal thought experiment. Madam, आपका नाम क्या है? नफीसा. Very graceful lady नफीसा. इस कायनात को बने हुए 13.8 बिलियन ईयर्स हुए हैं. कितने? 13.8 billion years the universe has traveled to give birth to Nafisa. That's how you see it. कि इस कायनात को तकरीबन 14 अरब साल लगे कि इस कायनात में, इस दुनिया में नफीसा पैदा हो, अदनान पैदा हो, आयशा पैदा हो, सुमैया पैदा हो, मरियम पैदा हो. और आपके पास लाइफ स्पैन कितना है? 60, 70, 80 years, 90 years, maximum 100 years.
अब इसके अंदर आपने जस्टिफाई करना है, यूनिवर्स को बताना है कि इट वॉज वर्थ, यूनिवर्स, इट वॉज वर्थ द वेट. यूनिवर्स शुड बी सेइंग दैट फॉर यू, कि इट वॉज वर्थ द वेट. सो हाउ डू यू डेवलप अ मीनिंगफुल लाइफ? पहले आप, ये जो पहला क्वाड्रेंट है, ये है व्हाट यू आर गुड एट. लेट मी आस्क यू, सर, कोई ऐसी चीज बताएं जिसमें आप अच्छे हैं जिंदगी में. कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, पर्सनल, प्रोफेशनल. आपकी आर्टिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप कम्युनिकेटर बहुत अच्छे हैं, कंप्यूटर स्किल्स यू आर गुड एट. मैडम द साइकोलॉजिस्ट, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, यू आर गुड एट जजिंग पीपल साइकोलॉजी और all right, what are you good at? Cooking and singing. Sir, yeah, what are you good at? Fantastic. Sir is good in communication. The lady with the red scarf at the back, what's that? That's a new word in my vocabulary. Meditation. Oh, meditation. Okay, good. Sir, what are you good at? Fantastic, you're good in explaining and singing. Sir, at the back. I'm good at earning passive income. Oh, fantastic. All right, good. Let's, sir, please. Yes. Data analysis में सर बेहतरीन है. मैडम आप, what you're good at? Sir, I'm a gynecologist by profession, but I'm a singer also. Fantastic. So first of all, congratulations for increasing the population of, being a catalyst towards increasing the population of Pakistan. And then you're a singer. That's a fantastic combo. Good. So madam is a gynecologist and a singer. Let's have two more people. Sir, please. Ji. I'm punctual. You're punctual. Fantastic. Okay. मैंने आपको कहा था ना कि पाकिस्तान इज अ गोल्ड माइन ऑफ अपॉर्चुनिटीज. मैं छोटी सी बात करता हूं. व्हाई डू आई से दैट? पाकिस्तान में कामयाब होने के लिए कोई आपको सुपर आइंस्टाइन लेवल इंटेलिजेंस नहीं चाहिए. जस्ट गेट योर बेसिक्स राइट. बेसिक्स क्या है? बी ऑन टाइम, डिलीवर योर वर्क ऑन टाइम, कीप अ स्ट्रॉन्ग फॉलो अप एंड बी कैरी गुड इंटेग्रिटी. ये चारों चीजें पाकिस्तानियों में नहीं है और ये बेसिक्स हैं. वेस्ट में ये बेसिक्स हैं कि आपको इंटेग्रिटी होनी चाहिए, टाइम पर आना चाहिए, काम टाइम पे करें और फॉलो अप अपना तगड़ा रखें. वी डू नॉट हैव दीज क्वालिटीज. सो इफ यू आर पंक्चुअल, दैट्स अ ग्रेट सुपर पावर टू पोजेस. सर, यू. I am basically in operations management. व्हाट यू आर गुड एट, ये बताएं आप. I don't know, probably other people are in better position to judge. I don't see myself as how good I am. Okay. Then this discovery needs to happen, sir. ये discovery, sir, please. Activist. You're an activist? Great, sir. I wish you success even more than Greta Thunberg. Thank you, sir. Okay, so you understand this exercise. पहले आज आपने जाके सुकून से ये फाइंड आउट करें, सर एंड एवरीवन हु डजंट नो, कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसमें मैं अच्छा हूं बाकियों से. बाकियों को एफर्ट लगती है ये काम करने में, लेकिन मैं इसको एफर्टलेसली कर लेता हूं. आपने सर बताया यू आर अ सिंगर. मैडम, यू आर अ ग्रेट गायनेकोलॉजिस्ट, यू आर अ सिंगर. हर बंदे में सिंगिंग एबिलिटी नहीं होती. यू गुड एट. ओके, डन. ये पहला हमने चेक बॉक्स टिक कर लिया. दूसरा क्या है? What you love. Now that is important. I'll give you my personal example ताकि फिर आपसे मैं बात करूं. When I started my corporate life, I was very good at giving presentations. सब कहते थे शाहरुख से presentations बनाओ, PowerPoint की presentations. I was very good at it. But hell, I used to hate it. I never loved it. So the ikigai cannot complete like this. Ikigai cannot complete like this. What you are good at
you need to fall in love with that as well. So for instance, madam आप कहती हैं I'm good at being a gynecologist, but perhaps you don't love it. You're saying yes, तो फिर ये क्वालिफाई नहीं करेगा आपके जिंदगी में मीनिंग देने के लिए. इकिगाई के सर्कल को कंप्लीट होने का दूसरा चेक बॉक्स ये है that you need to first find out the thing you're good at, and number 2, you need to find out or dovetail this with what you love. अब आप मुझे बताएं कि जो जिन चीजों के बारे में आप कहते हैं कि आप डेटा एनालिसिस, आप किसने कहा था who was a data analyst? You're a data analyst. Do you love it? Sir, you know the meaning of love? You've fallen in love? Okay, great. I accept it. Sir, you had computer skills. Do you love it? Okay. Good. कोई ऐसे लोग हैं यहां पे who are good at something, but they do not love that thing. They're just doing it because they are good at it. Someone, जी sir. Mostly married. So that's a very, जी जी. I said mostly married. Mostly married है. That's the truth of life. Experience भी है. जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? No, that's, of course, everyone loves their family and everyone loves the kids. You're good at communication? Any particular communication? Organizational communication? You love it? Okay. Ji sir, you. You love what you're doing. Madam, what are you good at and you're head over heels in love with? Sir, I have technical background, but basically my degree is from computers. Okay, but I don't love it, so I'm not doing it. Okay, तो फिर आप, okay, then, madam, the master of the ceremony. What I'm good at and what I love Yeah, as well. yeah. So there are a few things that I do, but one of them is basically being a voiceover artist. So I love doing radio ads and things Yeah. like that, and I love doing it. And let me tell you, That I don't get tired. let me tell you, you have a lovely voice. You're in the absolutely right profession. इसको तोड़ तक लेके जाएं. So here we are. First thing you're good at, what you love. अब मैंने जो आपको अपनी एग्जाम्पल दी, वो इससे मिसमैच है. ओके? लेकिन जब मैंने YouTube पे वीडियोस बनानी शुरू की, perhaps I wasn't very good at it. Slowly, gradually, I became good at it. And hell, I absolutely love it. So इस चीज में मेरा ये इकिगाई कहीं ना कहीं यहां तक 50% कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है. But that's not the end of the story. The third checkbox is, does the world need it? कि क्या जो जिस चीज में आप अच्छे हैं, you are in love with it, क्या दुनिया को भी ये चाहिए? कोई शख्स कहता है मैं बहुत अच्छा कॉइन कलेक्टर हूं, मुझे लव करता हूं, बट दुनिया को कॉइन कलेक्शन वाले नहीं चाहिए भाई. आप एज अ पर्सनल हॉबी कर सकते हैं, एज अ पर्सनल पैशन कर सकते हैं, बट द वर्ल्ड सीमिंगली डजंट नीड पीपल हु कलेक्ट कॉइन्स. आप पर्सनल हॉबी करें, बट वो आपकी जिंदगी का मीनिंग नहीं बन सकेगा उस तरीके से. सो द थर्ड थिंग यू नीड टू डू इज फाइंड आउट इज what you are good at, what you love, and does the world need it? आपकी एग्जाम्पल, you are good at singing, you love it, and world of course needs it. दुनिया को ये चाहिए. इसी तरह कुछ और लोग होंगे सर, you're good at something, do you love something? बताएं सर प्लीज. मैं बेसिकली ट्रेनर हूँ, तो जिसका मतलब है कि मैं आई हैव टू डिलीवर, आई हैव टू मेंटेन दैट रिलेशन. I love it and I do it. And Pakistan. And of Pakistan needs it like anything. Sir, please, you're good at something you love, and the world also needs it. I'm a good friend. You're a good friend. Sir, that's a great quality to have. That's a great quality to have. You're good at it, you love it. Does the world need it? लेकिन सर अगले पॉइंट पे शायद थोड़ा फंस जाएंगे. Can you be paid for it? Okay, now that's something which is debatable. क्योंकि इकिगाई कंप्लीट तब होता है जब ये चारों चीजें, ये तीनों चीजों के लिए आपको दुनिया पे करने के लिए भी तैयार हो. This is the catch. This is the catch. You want to say something? जी. No, I
Oh yeah, sure, please go ahead. I'm an educationist. Fantastic. From the first day when I joined school till today, I am in education. Yeah. I love my passion. Until today, I am in a school work. Fantastic. So if you can be paid for it, then it completes the ikigai. But the story is not complete. मसला ये होता है, लोग, when you're good at something and you love and you're stuck over here, this becomes your passion. जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी. इस पे आ रहा हूं सर, I'm coming to this. When you love something and the world also needs it, it becomes your mission. When the world needs it and you can be paid for it, it becomes your vocation. And when you can be paid for it and you're good at it, it becomes your profession. ये याद रखिएगा. जरूरी नहीं है कि आपको लाइफ में आपका इकिगाई मिल जाए. अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं और आपको उससे प्यार है, but the world doesn't need it and you cannot be paid for it, then you can classify, okay, now this is my passion. Sir, let me finish the thought then. What you love and the world also needs it, you're stuck over here, then it becomes your mission. When the world also needs it and you can be paid for it, it becomes your vocation. Perhaps, for example, मैं नौकरी करता हूं या कोई शख्स नौकरी करता है, वो 6 बजे के बाद इंडस हॉस्पिटल में जाके या कहीं पे जाके वॉलंटियर का काम कर देता है. उस वॉलंटियर के उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं या वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर लेता है. शायद उसको दुनिया पैसे दे दे और दुनिया को तो ये चाहिए भी है. सो इट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ योर वोकेशन. एंड लास्टली, जो हम प्रोफेशन क्या होता है? व्हाई डू वी वर्क? वी आर गुड एट समथिंग एंड द वर्ल्ड इज विलिंग टू पे अस, देन इट बिकम्स योर प्रोफेशन. मजा तब आता है. Real meaning in life comes when you are able to crack the code of all the four. और ये it's a long tedious exercise. Again मैं आपको बताऊं, when I started making YouTube videos, okay, चले मैं कहता हूं I was average कह लें. When you're good at it, I loved it. The world also needed it, but for 4 years, 3.5, 4 years, I didn't earn a single dollar. 1 रुपया नहीं बनाया मैंने. पहले 3.5 साल में 10,000 सब्सक्राइबर्स थे. अगले 1 साल में 1.5 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गए 1 साल के अंदर. That's the power of compounding. So finally, after some time, अगर आप इन चीजों पे you're relentless, you're restless, you keep on pursuing it, you are steadfast, you persevere, a time will come when the world will pay you for it. अब सवाल ये कि ये पेमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? बाबा फरीद का एक शेर है कि 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीद अटुक. 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीद अटुक. टुक रोटी को कहते हैं. 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीद अटुक. 6वां ही ना लब्बे ते 5 ही जांदे मुख. तो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो फिर पीछे वाले 5 भी खत्म. Absolutely, absolutely. और this is the problem. You know how much an average Pakistani earns? $1,643 GDP per capita. इसको अगर आप पर मंथ इनकम में कन्वर्ट करें तो एक एवरेज पाकिस्तानी 38,600 रुपीज. हम सब, आप में, जरदारीज ऑफ द वर्ल्ड एंड आरिफ हबीब्स ऑफ द वर्ल्ड, सब हमारी 38,600. दिस इज द, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट यू नो समटाइम्स यू नीड टू कॉल अ स्पेड. ये हमारी औकात है अनफॉर्चुनेटली. एक सिंगापोरियन, विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन, अ सिंगापोरियन, यू नो हाउ मच ही अर्न्स? 28 लाख रुपए. 28 लाख रुपए. अब एक सिंगापोरियन और एक पाकिस्तानी की सोच की वेवलेंथ में जमीन और आसमान का फर्क होगा कि नहीं?
एंड वी आर स्टक इन दिस quagmire. इस दलदल के अंदर हम लोग फंसे हुए हैं. वी आर stuck with no end in sight, no light at the end of the tunnel. So I always say this कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करें, इसमें कोई बुराई नहीं है. People tend to give negative connotation to this world called materialism or यार ये बड़ा materialistic शख्स है, बड़ा money minded है. If you're earning your wealth, your income through meaningful ways, through ethical ways, there is no harm in being materialistic or earning the money. इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब आप पैसा कमाएंगे उसके बाद दुनिया ही कुछ और होगी. The world will be different. And I'll give you a small example of how the world will be different. प्लेटो की बड़ी जबरदस्त बुक है, one of the greatest works of philosophy. उस बुक का नाम है द रिपब्लिक. How many of you have read the book? क्या बात है सर, you have read it. Almost 3-4 people have read the book. उस बुक के अंदर एक वाक्य है जो मैं अक्सर सुनाता हूं, उसको कहते हैं प्लेटोज एलेगरी ऑफ द केव. अब प्लेटो एलेगरी ऑफ द केव थोड़ा सा आप विजुअलाइज कीजिएगा मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं. समझिए ये एक ब्लैक दीवार है, इट्स अ ब्लैक वॉल, और इसके सामने 3 प्रिजनर्स बैठे हुए हैं, 3 कैदी बैठे हुए हैं. एंड दे आर हैंडकफ्ड एंड फुटकफ्ड. वो पूरी जिंदगी अपने चेयर से हिले ही नहीं है. एंड द ओनली थिंग दे हैव सीन इज दैट ब्लैक वॉल, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग दे हैव सीन. इस सामने काली दीवार है, यहां पे चेयर्स हैं, पीछे एक पाथवे है जहां पे लोग चलते हैं, रेडियां चलती हैं, लोग चलते हैं, और उसके पीछे आग जल रही है. क्योंकि आग जल रही है तो फायर होने की वजह से वो जो लोग चलते हैं उस पाथवे पे, उनके शैडोज सामने वाली दीवार पर पड़ते हैं. सो फॉर दीज 3 prisoners, those shadows on the wall is the reality of life. उनके लिए यही हकीकत है, यही असलियत है, यही रियलिटी है. वन फाइन डे व्हाट हैपेंस, उनमें से एक कैदी जो है उसके हैंडकफ्स थोड़े से लूज होते हैं, वो अपना पैर छुड़ाता है और गार से निकलने की कोशिश करता है. गार में बैठे हुए ये लोग, थोड़ा सा दूर जाता है, ही सीज द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. उसको एक रोशनी नजर आती है. ही फॉलोज द लाइट. वो लाइट उसको उस गार से बाहर ले जाती है. वंस ही कम्स आउट ऑफ द केव, ही इज एब्सोल्युटली मेस्मराइज्ड कि यार ये क्या है. ही सीज द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. बच्चे, दरख्त, फूल, सूरज, चांद, घास, पीपल स्माइलिंग, पीपल चैटिंग, समंदर, दरिया, पानी, all of that. He sees that for the first time. He becomes absolutely crazy. What a beautiful, what is this? This is the reality. मैं जिन shadows को reality समझ रहा था वो तो कुछ और है. I was fooled into believing that that's the reality. He goes back, he comes back to his fellow prisoners और कहता है, you morons, जिनको तुम असलियत reality समझ रहे हो, that's not the reality. That's just an illusion. वो पहले तो उसका मजाक उड़ाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा होते हैं, बट ही इज रिलेंटलेस. वो उसको बोलता रहता है. एंड इवेंचुअली दे बिकम सो berserk, so angry that they kill him. They don't want to open their eyes to reality. Unfortunately, we in Pakistan consider these shadows to be the reality. हमें भी यही लगता है कि हमें जो चीजें सिखाई गई बस वही अल्टीमेट रियलिटी है. हम ही जन्नत में जाएंगे, हम ही बख्शे हुए हैं, हम ही ग्रेट हैं. बट द वर्ल्ड इज मूविंग. You know what AI is doing? There are 2 companies, Cellularity and Centennial. They are working on making human beings immortal. At least they are trying. What I want is कि इस डिबेट में ना पड़े कभी भी कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता. Be the creators of technology rather than consumers. एक छोटा सा एनेक्डोट शेयर करता हूँ. 1615 में बादशाह जहांगीर के दरबार में फर्स्ट एम्बेसडर आए इंग्लैंड से, सर थॉमस रो. सर थॉमस रो जब आए उनके दरबार में तो उन्होंने बादशाह को बोला कि आपके लिए मैं गिफ्ट्स लेकर आया हूँ. तो उन्होंने पेटी खोली और उसके अंदर से गिफ्ट निकले. उस जमाने के मॉडर्न टाइम्स के दूरबीन, बायनोकुलर्स, चिमटे, कैंचियां, ऐनकें. द बादशाह गॉट मेस्मराइज्ड. उसने कहा यार ये क्या, आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस. तो अगले कुछ दिनों बाद
बादशाह जहांगीर साहब दोबारा आए सर थॉमस रो के पास विद अ लिस्ट कि मुझे 100 दूरबीनें चाहिए, 500 कैंचियाँ चाहिए, 1000 एनके चाहिए. Instead of asking that how the physics of these things work, please tell my nation, मेरी कौम को ये तो सिखाओ कि how the thing works, what is the physics behind it. उन्होंने एक इम्पोर्ट का पर्चा दे दिया. Again the mindset. थॉमस रो ने कहा मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए काम, but allow my nation to do trade with you. You see the difference in mentality, the difference in thought. This is what happens. And this is what I want to propagate to you. कि rather than being consumers of technology, become the creator of technology. This system somehow will help you become the creator, will help you create yourself. एक जर्मन जबान का बड़ा मेरा फेवरेट वर्ड है और फ्रीडरिक नीचा की सारी फिलॉसफी उसके ऊपर खड़ी हुई है. The word is Selbstüberwindung. It's a very Gada sort of a word, but for me this is the best word of my life. Selbstüberwindung. इसको अंग्रेजी में इसकी ट्रांसलेशन बनती है सेल्फ ओवरकमिंग. सेल्फ ओवरकमिंग क्या है? कि अपने आप को काबू करना. You know, the biggest enemy of your life is you yourself. And the biggest purpose of life is to overcome yourself. अपने आप का आप जो है वो सबसे ज्यादा आपको नीचे धकेलता है. सोसाइटी तो करती ही है, बाकी सुपर स्ट्रक्चर्स तो करते ही हैं. But sometimes you're lazy, you don't want to go to the gym. Sometimes you're lazy, you don't want to read. Sometimes you're lazy, you don't want to pursue your passion. And the time goes. और वो कहते हैं ना कि वक्त जूं जूं रायगां होता गया, जिंदगी को काम याद आने लगे. कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है फिर बंदे को याद आता है कि यार ये तो मुझे ये भी करना था. And eventually life goes and we die with regret. So the best thing you can do is overcome yourself. And last चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं before I go to the question and answer session is the 3 layers of behavior change. Okay? अगर आपने behavior change करना है तो उसकी 3 layers क्या हैं? This will fall. Someone can come please. दोस्त मैं सिर्फ ये ड्रॉ कर लूं, उसके बाद यू कैन जस्ट हेल्प मी ड्रॉ दिस. या नहीं मूव करेगा ये. यहां पर है आउटकम, यहां पर है प्रोसेसेस और यहां पर है आइडेंटिटी. आप 3 तरीके से अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं. वन इज आउटकम बेस्ड बिहेवियर चेंज. अब आउटकम बेस्ड बिहेवियर चेंज क्या है? मुझे रमजान से पहले 5 किलो वजन लूज करना है. आउटकम बेस्ड बिहेवियर चेंज. मुझे अगले 3 महीने में फ्रेंच जबान सीखनी है. आउटकम बेस्ड बिहेवियर चेंज. गुड बट नॉट लॉन्ग लास्टिंग. क्योंकि एक दफा जब आप बिहेवियर चेंज कर लेंगे, अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे, you'll go back to point zero. The chances are you'll go back. Probability is high. तो आप या तो आउटकम बेस्ड बिहेवियर चेंज करें या प्रोसेस बेस्ड क्या है? आप उसकी हैबिट डाल लें कि rather than losing weight, I'll say कि मैं इसको अपना डेली रूटीन और लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना चाहता हूँ वर्कआउट को. या मैं कोई नई जबान सीखना चाहता हूँ, या कोई मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता हूँ, या आई वांट टू बी अ गुड ओरेटर और गुड ऑथर और अ गुड राइटर. तो आप प्रोसेस अपना जिंदगी का तगड़ा करें. But the most potent is identity-based behavior change, where you absolutely go through a metamorphosis of your personality and change everything inside out. But for that, you need to rewire, retool, recalibrate, realign, re-intellectualize yourself. यहां पर हम लोग फंसते हैं. Because I'll give you again my personal example. Okay, my dad belonged from a certain school of thought जिसको हम बरेलवी school of thought कहते हैं. And I lived my life with my dad and I have utmost respect for that school of thought. But I am an individual. I am an existentialist.
और मेरे डैड व्हेन ही वाज अलाइव तो हमारी बड़ी डिबेट होती थी और ही वाज लाइक अ फ्रेंड टू मी। उनकी एक आइडेंटिटी थी, लेकिन मैं उस आइडेंटिटी से अब रिलेट नहीं करता उनके थॉट प्रोसेस से। इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर आप अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से वेरी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करें। इकबाल ने कहा था ना कि खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। वी टेंड टू थिंक कि हमारे पेरेंट्स ही सही हैं, हमारे बड़े ही सही हैं। इसमें दिस इज नॉट द ट्रूथ। You can have a balanced communication where people, young people, can put forward their point of view and discover their identity. So if you want to really change your behavior, work on your identity. Work on the things which help you completely, like I said, undergo a metamorphosis. वो कहते हैं ना, what the caterpillar calls the end, the world calls a butterfly. सो आपके लिए अपनी आइडेंटिटी चेंज करना बहुत जरूरी है अगर आप वाकई में अपने आप को सेल्फ डेवलप करना चाहते हैं। अगर आपको यह लगता है कि पुराने मेथड से यू विल बी एबल टू डेवलप अ न्यू फॉर्म ऑफ योर सेल्फ, इट विल नेवर बी पॉसिबल। इट विल नेवर एवर बी पॉसिबल। सो वंस यू गो ऑन दिस परसूट, यू विल लूज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। पीपल विल कम फॉर यू। पीपल विल से यार ये भटक गया शख्स, ये किसी और राह पे निकल गया, अल्लाह तुझे हिदायत दे। हाँ, सुन लें वो बातें, सुन लें वो बातें। कोपर्निकस ने जब कहा कि द वर्ल्ड, अर्थ, द सन रिवॉल्व्स अराउंड, डजंट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जिसको हीलियोसेंट्रिक मॉडल, उसने जियोसेंट्रिक मॉडल को बोला जो वाकई में रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स है। The church used to believe that the entire solar system revolves around the earth. But the reality is, the earth revolves around the sun. आज हमारे दीनी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो आज भी ये बिलीव करते हैं कि सारी दुनिया, बल्कि वो तो ये बिलीव करते हैं that the earth is static. अब क्या कह सकते हैं उनको? It doesn't change the reality. The truth keeps on existing if you deny it. All right? Huh? Flat earth. Yeah, flat earthers also exist. So the point is, if you really want to make it big in life, work on your inner soul, work on your inner self, and work on this principle of Selbstüberwindung. Try to overcome yourself. फलसफा पढ़ें। पाकिस्तानियों को फलसफे की बहुत ज़रूरत है। यूजुअली हम लोग ये सोचते हैं कि people who do not have any time or any good thing to do in life, they become philosophers. लेकिन दुनिया की हर सोसाइटी, हर सिविलाइजेशन, हर मुल्क फलसफे पे कायम है। अमेरिका की जो सोसाइटी है वो जॉन रॉल्स के जस्टिस सिस्टम पे कायम है। नीचा की फिलॉसफी ने कितना इंपैक्ट किया यूरोप को, जर्मन्स को। हाइडेगर ने, हेगल ने, एरिस्टोटल ने। मुस्लिम्स ऑल्सो हैव गुड फिलोसोफर्स। गजाली हैं, इब्ने रुश्द हैं, इब्ने खल्दून हैं, इब्ने सीना, all of these were great scholars. I do not mean to propagate any certain school of thought, but at least सोचें तो सही। मैं जो अपनी दूसरी बुक है, it will be published in April. The name of the title of the book is 100, and the subtitle is 100 things that Pakistan needs to do before turning 100. So I don't know whether I'll be successful or not, but I somehow want to step into politics somewhere in the future. Okay? It's a tough terrain, but let's see what happens. मेरी एस्पिरेशन तो हैं। तो वो किताब मेरा एक मैनिफेस्टो है पाकिस्तान के लिए कि 100 चीज़ें पाकिस्तान को करनी है। पाकिस्तान विल टर्न 100 in 2047। तो अगले 24 साल हैं, 23-24 साल हैं हमारे पास, 22 साल हैं, जिसमें हमने पाकिस्तान को, एक्चुअली 21 साल हैं या नाउ, जिसमें पाकिस्तान ने अपने आप को टर्न अराउंड करना है। तो मैंने वो 100 चीज़ें निकाली हैं जिसमें पाकिस्तान को वर्कआउट करना पड़ेगा। और उसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे मैंने फिलॉसफी स्कूल्स की बात की, लेकिन उसमें सबसे पहला चैप्टर है नेशनल इंटेलेक्चुअल ऑडिट। पाकिस्तान नीड्स अ मेजर नेशनल इंटेलेक्चुअल ऑडिट at every level, top to bottom. The thought process that this nation follows or advocates, it hasn't worked. So it needs a complete overhaul. तो उसके अंदर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है कि कौम को सिर्फ सोचना है। We just don't think. Pakistanis don't think.
only if we start thinking, that's the bare minimum I want people to do, the youth, the elderly, कि सोचो तो सही कि कोई भी चीज होती है उसके पीछे रीजन क्या है, और आपका जो पर्सनल बिलीफ सिस्टम है उसके पीछे रीजन क्या है, आपके जो बाप दादा ने फॉलो किया उसके पीछे रीजन क्या थी, एंड ट्राई टू फाइंड योर ओन पर्सनल आइडेंटिटी. There is no harm in finding yourself. With that thought, I want to end my talk with a शेर from इकबाल साहब. 2 शेर सुनाता हूं अगर मुझे याद रहे तो, कि नंबर 1, खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी. खबर नहीं क्या नाम है इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी. अमल से फारिग हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना. और दूसरा, टू मोटिवेट यू पीपल टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ इज के उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, उठ कि अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, मशरिक और मगरिब में तेरे दौर का आगाज है. थैंक यू सो मच.